السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کووڈ بحران سے نمٹنے کے لیے دوسرے معاشی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے آج بتایا کہ 3,16,000 کروڑ روپے کا یہ پیکج نقل مکانی کرنے والے ورکرز کو مفت غذائی اجناس اور 2 لاکھ کروڑ روپے کا پیکج کسانوں کو رعایتی قرض فراہم کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خوانچہ فروشوں کی بھی مدد کی جائے گی جو ملک گیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ کل کے اعلان کردہ پیکج کے منجملہ 5,94,000 کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ ان میں سے بیشتر بجٹ سے ہٹ کر ہیں۔ کل MSMS کے علاوہ برقی سربراہ کرنے والی کمپنیوں کو رعایتوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ دنوں قوم سے خطاب کے دوران کورونا سے متاثرہ معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے 20 لاکھ کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا۔ کل اور آج کے پیکجز کو ملا کر حکومت نے جملہ 9 لاکھ کروڑ روپے کے پیکجوں کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں مہلک وبا کورونا وائرس کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگر تازہ اعداد و شمار کی بات کریں تو کورونا وائرس متاثرین کی تعداد 80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریاستوں سے موصول تازہ جانکاری کی بنیاد پر جمعرات کی رات تک یہ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ ملک کی 11 ریاستوں کے اعداد و شمار اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ملک میں کورونا متاثرین کی کل تعداد 81,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے، جبکہ صرف 2 دنوں میں ہی تقریباً 10,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر مہاراشٹر میں ایک دن میں 1602 کیسز سامنے آئے ہیں۔ حکومتوں کے ذریعے مزدوروں کو لانے کے بڑے بڑے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، اس کے برخلاف آپ ہائی وے پر جائیں تو آپ کو پیدل چلنے والے بے بس مزدوروں کا کارواں نظر آئے گا۔ مدھیہ پردیش حکومت نے کل بارڈر سے بارڈر تک 375 بسوں کو چلانے کا اعلان کیا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حکومت بسیں چلا رہی ہے تو ان بسوں میں کون سفر کر رہا ہے اور یہ پیدل جانے والے کون لوگ ہیں؟ رامو نام کا ایک شخص حیدرآباد میں روٹی کی تلاش میں گھر چھوڑ کر نکلا تھا، لیکن جب وہاں پر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی ملنی مشکل ہو گئی اور حکومت کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملی تو رامو نے اپنے ہاتھوں سے گاڑی بنائی اور اس گاڑی میں حاملہ بیوی اور 2 سال کے بیٹے کو بٹھا کر گاڑی کو کھینچتا ہوا پیدل ہی منزل کی جانب نکل پڑا۔ رامو کا کہنا ہے کہ 800 کلومیٹر کے سفر میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ راستے میں ایک جگہ کھانا دیا گیا لیکن وہ ایسا نہیں تھا جسے کھایا جا سکے۔ رامو بالا گھاٹ تک کا سفر طے کر چکا ہے، ابھی اسے آگے اور جانا ہے۔ ہائی وے پر پیدل جانے والا اکیلا نہیں ہے بلکہ ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ کوئی سائیکل سے تو کسی نے بیلوں کی جوڑی مکمل نہ ہونے پر بیل کے ساتھ خود کو لگایا اور منزل کی جانب نکل پڑا۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے لوگوں سے تاکید کی ہے کہ وہ وبا کے پیش نظر شب قدر گھروں میں ہی منانے کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدقہ فطر 55 روپے فی کس مقرر ہوا ہے، تاہم صاحبان ثروت اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مفتی اعظم نے میڈیا کو بتایا کہ وبا جاری ہے اور جموں کشمیر میں حالات تشویشناک ہیں، اس سلسلے میں لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ شب قدر گھروں میں ہی منائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال صدقہ فطر 55 روپے فی کس مقرر ہوا ہے، تاہم صاحبان ثروت کھجور یا کشمش کے حساب سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ درِ اسناد دارالعلوم بلالیہ نے اس سال اجتماعی اعتکاف کا اہتمام نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیرالہ میں کانگریس پارٹی کے 3 ارکان پارلیمنٹ اور 2 ارکان اسمبلی کو احتیاط کے طور پر کوارنٹائن میں جانے کی ہدایت دی گئی ہے، جو گوالیار میں ایسے فرد کے ساتھ رابطے میں آئے تھے جس کے بعد میں کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ کانگریس کے 5 قائدین ان 172 افراد میں شامل ہیں جنہیں یہ ہدایت دی گئی ہے۔ ان میں پولیس کے عہدیدار، صحت کے عہدیدار اور صحافی شامل ہیں۔ متنازع اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حوالگی کے لیے ہندوستان نے ایک بار پھر ملیشیا سے ایک رسمی درخواست کی ہے۔ ذاکر نائک کے ملیشیا سے ہندوستان میں حوالگی کی کوشش میں مصروف ہندوستانی حکومت نے گزشتہ سال بھی ملیشیا کو اس کی حوالگی کے لیے درخواست بھیجی تھی، لیکن انہیں کامیابی ہاتھ نہیں لگی تھی۔ بھلے ہی دہلی حکومت نے تبلیغی جماعت کے کارکنان کو کوارنٹائن سینٹر سے چھٹی دینے کا فیصلہ کر دیا ہو، مگر ان کے گھر جانے کی راہ اس قدر آسان نہیں ہے۔ ایک طرف تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے لیے سواری کا مسئلہ ہے، تو دوسری طرف جس جگہ وہ محروس ہیں اور جہاں پہنچنا ہے، ان دونوں اضلاع کے DM SDM سے اجازت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی کی سرپرستی میں جمعیت کا ایک ٹاسک فورس روزے کی حالت میں دھوپ میں گھنٹوں SDM صاحب کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر یہ اجازت نامہ حاصل کر رہا ہے۔ گزشتہ شب بدرپور، نیو فرینڈز کالونی، وزیر آباد اور دین دیال اپادھیائے مارگ کوارنٹائن سینٹر سے تبلیغی کارکنان کو نکالنے میں پوری رات لگ گئی، پھر جماعت کے احباب کو سحری کھلا کر روانہ کیا گیا۔ آج دن بھر سلطان پوری، نیریلا دوارکا، وزیر آباد اور جماعت کے احباب روانہ کیے گئے۔ مہاراشٹر اور گجرات میں عالمی وبا کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان دونوں ریاستوں میں اب تک مجموعی
35,189 केसेस दर्ज किए गए हैं और 1541 हलाकतें हुई है। तमिलनाडु में भी इन्फेक्शन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ये मुतासिरीन की तादाद के मामले से तीसरे मुकाम पर है। यहाँ अब तक 9,227 अफराद मुतासिर हुए हैं जबकि 64 हलाक हो चुके हैं। मुंबई में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में हुकूमत ने यह इरादा जाहिर किया है। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे जिन्होंने 29 नवंबर को महाराष्ट्र के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लिया था, वो किसी भी ऐवान के रुकन नहीं थे और इख्तिदार पर बाकी रहने के लिए इन्हें 27 मई तक इन मजलिस कानून साज कारकुन होना ज़रूरी था। वाज़रे की रियासत के ऐवान वाला में 9 खाली नशिस्तें थी। कानून साज असम्बली के 288 मेंबरान पर मुश्तमिल इंतखाबी कॉलेज के जरिए रायशुमारी से पुर की जाती है। महाराष्ट्र के 62 साल वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पहली बार कानून साज काउंसिल के रुकन बने हैं। वो शिवसेना के सरबराह भी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को वज़ीर आला ओहदे का हलफ लिया था। उद्धव ठाकरे बिला मुकाबला मुंतखब होंगे, ये बात इसी वक्त वाज़ेह हो गई थी जब महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 9 नशिस्तों के लिए 21 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए उन्होंने अपनी अहलिया फर्दन काबीनी वज़ीर आदित्य ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के कायदीन जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नायब वज़ीर आला अजित पवार, रियासती कांग्रेस के सदर और महसूल वज़ीर बाला साहब खौरात और शिवसेना के सीनियर रहनुमाओं के हमरा अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। राष्ट्रपति भवन ने गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद में ताउन और आत्मनिर्भर भारत अभियान की हिमायत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाते हुए लिम्बोजिन कार की खरीदी टालने समेत मुख्तलिफ अखराजात में तखफीफ का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर रामनाथ कोविंद ने पूरे साल की अपनी तनख्वाह से 30% कोरोना राहत कामों के लिए अतिया करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सदर कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के अखराजात में भी तखफीफ करके एक मिसाल पेश करने की हिदायत दी है। सदर का मानना है कि खर्चों में तखफीफ करके ख्वाह बहुत बड़ी रकम की मदद ना हो, लेकिन ये हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने की हुकूमत की कोशिश में अहम हिस्सेदारी ज़रूर साबित होगी। अलाउद्दीन सदर कोविंद ने सदर जमहूरिया के इस्तेमाल में आने वाली लिम्बोजिन गाड़ी की खरीदारी को भी मुलतवी कर दिया है। इस गाड़ी की तखमीना कीमत 10 करोड़ रुपए है। आलमी इदारा सेहत WHO ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं और दुनिया को इस वबा के साथ ही जीना सीखना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और वबा पर काबू पाने के लिए कई ममालिक लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों में नरमी की तरफ जा रहे हैं। तमाम माहिरीन मुसलसिल खबरदार कर रहे हैं कि ऐसा करने से वबा की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। आलमी इदारे सेहत ने भी कोरोना वायरस के फैलाव को संगीन करार दिया है। इदारे के हंगामी हालात के डायरेक्टर माइकल रेयान ने जेनुआ में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना वायरस इंसानियत में सरायत कर चुका है और अब ये पेशगोई नहीं की जा सकती कि इस पर कब तक काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया से अब तक HIV खत्म नहीं हुआ और अब इसे कोरोना वायरस की सूरत में एक वबा का चैलेंज दरपेश है जो जल्द खत्म होने वाला नहीं है। हरमैन शरीफीन की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद हरम की तीसरी तोसी के मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी। अरबी खबर रसां इदारे उर्दू न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद नबी की जनरल प्रेसिडेंसी के प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से मस्जिद हरम की तीसरी तोसी के बाकी कामों को मुकम्मल करने का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से बताया गया है कि दोबारा शुरू होने वाले कामों में छतों की आराइश के लिए मार्बल की तनसीब, सहन में मौजूद महराबों की आराइश, मरकजी दरवाजे की तकमील और दीगर अहम उमूर शामिल हैं। एजेंसी ने मस्जिद हरम में मुसल्लियों की काबिल लिहाज हद तक कम तादाद का फ़ायदा उठाते हुए मुतालिका हुक्काम से तालमेल के साथ बाकी रह जाने वाले कामों को तेज़ी से निपटाने के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया है। तेलंगाना के वजीर सेहत एटला राजेंद्र ने मेडिकल एंड हेल्थ के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हर घर में मेडिकल टेस्ट को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना वायरस की अलामत का पता चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की 4 अलामतों में से अगर किसी में 2 अलामतें पाई जाएं तो इसका टेस्ट लाजमी तौर पर कराया जाए। वजीर सेहत ने आज मेडिकल एंड हेल्थ के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जिसमें शहरी और दही इलाकों में मेडिकल टीमों की जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला हेल्थ ऑफिसर, सरकारी दवाखानों के सुपरिटेंडेंट्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अहदेदारों, ANM और आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना वायरस के 47 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ताहम आज किसी मरीज के फौत होने की कोई इत्तला नहीं है। कहा गया है कि जो 47 नए केसेस सामने आए हैं इनमें 40 का ताल्लुक GHMC हुदूद से है जबकि 5 का ताल्लुक रंगारेड्डी जिले से है। मुतासरीन में 2 तारिकीन वतन मजदूर भी शामिल हैं। इस तरह आज 47 नए पॉजिटिव केसेस के बाद रियासत में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 1414 तक पहुंच चुकी है। तेलंगाना में अंदरून एक हफ्ता तमाम क्लिनिक्स और दवाखानों में कोरोना वायरस के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज की इजाज़त देने के इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महकमा सेहत की जानिब से शहर के अलावा रियासत के दीगर अजला में इस पाबंदी के खात्मे पर गौर किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के सबब जारी लॉकडाउन के
सबब जिन मरीजों को शदीद सूरत-ए-हाल का सामना है इस पर काबू पाया जा सके। कहा जा रहा है कि महकमा सेहत से रहनुमाना खतूत की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया और हुक्काम की जानिब से समाजी फासले की बरकरारी और क्लिनिक्स को मुसलसिल साफ सुथरा बनाए रखने के इक़दामात के साथ इजाज़त दी जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर्स और दवाखानों को पाबंद बनाया जाना चाहिए कि वो कोरोना वायरस की अलामत का शिकार मरीजों का इलाज ना करें, बल्कि इन्हें गांधी हॉस्पिटल से रुजू करने के इक़दामात करें। गुज़िश्ता 3 दिन में ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में कोरोना पॉजिटिव के 157 मामलात मंजर-ए-आम पर आए हैं, जिनमें माइग्रेंट वर्कर्स की खास तादाद शामिल है। ग्रेटर हैदराबाद और खास तौर पर पुराने शहर में गुज़िश्ता 2 दिन में कोरोना केसेस में इजाफे ने हुक्काम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। दीगर रियासतों से तेलंगाना पहुंचे माइग्रेंट वर्कर्स के मुआयनों का आगाज किया गया, जिसके नतीजे में इनमें कई पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पुलिस और बल्दी हुक्काम ने चौकसी अख्तियार करके लेबर्स की नकल व हरकत और इनके रिहायशी मुकामात पर कड़ी नजर रखी है। खुसूसी मेडिकल टीमों को तश्कील दिया गया ताकि माइग्रेंट वर्कर्स का वक्तन फवक्तन टेस्ट किया जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना केसेस सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद तक महदूद हो गए और इसमें माइग्रेंट्स के इजाफे ने नया दर्द सिर पैदा कर दिया है। रेड जोन के बावजूद लॉकडाउन के दौरान बाज़ रियायतों का गलत फायदा उठाकर समाजी फासला और दीगर पाबंदियों की खुली खिलाफ वर्जी की गई, जिसके नतीजे में शहर में फिर कोरोना वायरस ने सर उठाया है। पुराने शहर के किशनबाग, मुगलपुरा और जियागुड़े जैसे इलाकों में कोरोना पॉजिटिव पाए मरीजों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हुक्काम का कहना है कि तहदीदात पर अमल में नाकामी के सबब केसेस में इजाफे हो रहे हैं। इसी दौरान बाज़ अजला से पॉजिटिव केसेस की इत्तलात मिली है, जहां गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से सूरत-ए-हाल काबू में थी। शहर में सड़कों पर लगाए जाने वाले बाजारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सड़कों पर कपड़ों और दीगर अशिया की फरोख्त को रोक दिया गया और पुराने शहर के कई इलाकों में जहां तिजारती सरगर्मियां तेज हो रही थी, इन्हें रोकने की ताकीद की जा रही है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने हुकूमत की जानिब से मुहिम और लॉकडाउन के बावजूद शहर हैदराबाद के सलम इलाकों के अलावा सलम के करीब तिजारती इलाकों में सरगर्मियां बढ़ती जा रही थी, जिसके सबब समाजी फासले के उसूलों के अलावा दीगर रहनुमाना खतूत और लॉकडाउन कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी। महकमा पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिन से इन तिजारती सरगर्मियों को रोकने के इक़दामात किए जा रहे थे और फुटपाथ पर दुकानात को हटाने की ताकीद की जा रही थी। इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद के पेश नज़र इस तरह की दुकानात की तादाद में इजाफा होने लगा था, जिस पर पुलिस की जानिब से आज मुगलपुरा और बीबी बाजार चौराहे पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर फरोख्त की जाने वाली अशिया को जब्त करने की कार्रवाई अंजाम दी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में फलों के अलावा जिन अशिया ज़रूरिया की इजाज़त फराहम की गई है, इनकी फ़रोख्त में कोई रुकावट पैदा नहीं की जा रही है, लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हुए बाद नौजवानों की जानिब से कपड़े और गारमेंट्स के अलावा हौजरी अशिया की फ़रोख्त शुरू कर दी गई थी, जिस पर आज दोनों शहरों के कई इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सामान को जब्त करने का अमल शुरू कर दिया है। तेलंगाना के बल्दियात के हुदूद में घरों की तामीर के लिए इजाज़त के खुदकार निज़ाम पर जून के पहले हफ्ते से रियासत भर में अमल किया जाएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने यह बात बताई। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ ने आज महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के आला ओहदेदारों के साथ तामीरात की इजाज़त से मुतालिक एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि TSB पास नामी खुदकार तरीक़ेकार जून के पहले हफ्ते से अमलावरी का आगाज़ किया जा रहा है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह से अगर मोहब्बत करते हैं तो अपने अंदर हज़रत सैयदना अली का किरदार पैदा करें, फरियादों की मदद करें, गरीबों की तकलीफ दूर करें। मौजूदा हालात में जबकि रमज़ान मुबारक का आखिरी दहा भी शुरू हो चुका है, अल्लाह की रहमत उरूज पर है। ऐसे में हम अगर गरीबों परेशान हालों की ज़्यादा मदद करेंगे तो हम दोनों जहां में सरकरोई हासिल कर सकेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आज शहादत सैयदना अली करमुल्लाह वजह और रमज़ान मुबारक की पहली ताख़रात के मौके पर अपने ऑनलाइन खिताब के दौरान ये बात बताई। सदर मजलिस ने कहा कि कोरोना वायरस के वबाई दौर में इस बीमारी से निपटने के लिए हुकूमत ने जो गैर मनसूबा बंद और गैर दस्तूरी लॉकडाउन का ऐलान किया, इसकी वजह से मुल्क भर में गरीब परेशान हाल हो गए हैं। चिलकलगुड़ा पुलिस की जानिब से एक नौजवान को शदीद जद्दोजहद करने का वाक़या पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक 45 साला शेख ख्वाजा साकिन वारिसगुड़ा आज इफ्तार के बाद अपने घर से किसी काम से रिश्तेदारों के मकान जा रहा था कि इस दौरान पुलिस की गश्त गाड़ी वहां पहुंची। पुलिस को देखते ही गली में मौजूद बाद नौजवान भाग रहे थे कि इस दौरान शेख ख्वाजा वहीं रुक गए। पुलिस ने इन पर बेजा लाठियों से हमला किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया और इनकी तबीयत बिगड़ गई। हमले के साथ ही वो वहीं गश खाकर गिर पड़ा। बेदर्दी से नौजवान की पिटाई पर मुकामी अफराद में बरहमी की लहर पाई जा रही है। साइबराबाद पुलिस ने लॉकडाउन के तकरीबन 9,15,182 मुकदमात क़वायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ दर्ज किए हैं। पुलिस राय के मुताबिक 20,591 गाड़ियां जब्त की गई, जिनमें 16,000 मोटरसाइकिलें, 1,004 ऑटो, 2,246 फोर व्हीलर्स और 144 दीगर गाड़ियां शामिल है। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक हेलमेट बगैर पहनने के गाड़ी चलाने वाले 4,46,116 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं।
موٹر سائیکل کی عقبی نشست پر سوار شخص کی جانب سے ہیلمٹ نہ پہننے پر 2,36,027 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ برق رفتاری سے گاڑی چلانے پر 44,227 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ گاڑیوں کے سائیڈ مررز نہ ہونے پر 92,944 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔